Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I'm your EVS teacher for class 4th. In class 4th EVS, we have already completed 17 chapters and today we are starting a new chapter, that is chapter number 18. And this chapter is named as About Houses. And today we are starting the part 1 of this chapter. प्यारे बच्चों, कक्षा 4 के EVS में हम अब तक 17 अध्याय पढ़ चुके हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया अध्याय, 18वां अध्याय। इस अध्याय का नाम क्या है? इस अध्याय का नाम है अबाउट हाउसेस, यानी घरों के बारे में। और आज हम इस अध्याय के पहले भाग को शुरू कर रहे हैं। सी, here is a home. See, you can see this picture. So this home is saying that I am Kavita's home. I was made 50 to 60 years back by Kavita's Dadaji. Initially, he and his friends together got 2 rooms made. So there is a home and this home is telling his story, and this home is telling that I am Kavita's home and I was made around 50-60 years back, and this home was made by Kavita's Dadaji. So he and his friends together made this home and initially only 2 rooms were constructed. तो बच्चों, यहाँ हम एक घर की बात कर रहे हैं। जैसा घर यहाँ दिख रहा है ऐसा ही एक घर है जो अपनी कहानी बता रहा है। वो घर बता रहा है कि मैं कविता का घर हूँ और मुझे कब बनाया गया था? बहुत पहले, यानी 50 से 60 वर्ष पहले मुझे बनाया गया था। किसके द्वारा? कविता के दादाजी के द्वारा। अब कविता के दादाजी और उनके कुछ दोस्त थे, उनके कुछ मित्र थे, उन लोगों ने शुरुआत में सिर्फ 2 कमरे बनाए थे। फिर क्या हुआ इस घर के साथ? चलिए देखते हैं। Now there was one kitchen, there were no toilet and bathroom. So at that time when it was constructed in starting, it was having one kitchen but there was no bathroom and toilet. तो बच्चों, उस घर ने ये भी बताया कि जब मुझे बनाया गया वहाँ 2 कमरे थे और एक रसोई थी, लेकिन तब कोई भी टॉयलेट या स्नान घर वहाँ पर नहीं था। Now walls were made of kneaded mud and stones. So the walls were actually made with the kneaded mud and stones. तो ये घर ने ये भी बताया कि मेरी जो दीवारें थी उसे किससे बनाया गया था? कुछ पत्थरों और जो मिट्टी का लेप है उसको गूंथ कर उनसे उस घर को बनाया गया, यानी उस घर की दीवारें उसी से बनी हुई थी। The floor was smeared with a paste of mud and cow dung. So the floor was also smeared with the help of mud and cow dung. तो उस घर ने ये भी बताया कि जो मेरा फर्श था उस पर लेप किया गया था, और लेप किसका था? गाय के गोबर का और मिट्टी का मिला करके लेप किया गया था। The roof was made from straw and bamboo. So the roof of that house was made with the straw and bamboo. तो जो छत थी उस घर की, उसने ये भी बताया कि मेरी छत को बनाने के लिए घास फूस और बांस की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। तो ये हम बात कर रहे हैं कविता के घर की, और कविता का घर बता रहा है कि जब उसके दादाजी ने बनाया था तब उसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों का उपयोग किया गया था। So here we talked about the Kavita's house and this home is telling its own story. Now, when Kavita's father grew up, he adopted organic farming. So when Kavita's father finally grew up, he started his own work and he started organic farming. तो कविता के पापा जब बड़े हुए तो उन्होंने अपना काम शुरू किया और उन्होंने अब जैविक खेती को अपनाया और जैविक खेती करना शुरू किया। With great hardship, he increased the production in farm. Through organic farming, with great hardships, he increased the production in his farm. तो कविता के पापा ने बहुत मेहनत की और उस जैविक खेती में मेहनत करने के फलस्वरूप उन्होंने अपने खेत के उत्पादन को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया, यानी अब उनकी फसल बहुत अच्छी होने लगी। Accumulating
his small savings, he collected a big amount of money. So he accumulated his smaller savings and finally he collected a big amount of money. तो कविता के पापा ने अपनी छोटी छोटी बचत करते हुए और एक बहुत बड़ा जो धन था वो इकट्ठा कर लिया और वो धन उनके लिए अब काम आने वाला था. Now with the same money he changed me into a pakka or permanent structure. So Kavita's Dadaji made a house which was not a pakka structure. As we have seen, that house was having roof made up of straw and bamboo. Even the walls were also not pakka structure. तो बच्चों यहाँ हमने देखा कि अब कविता के पापा ने जब पैसे इकट्ठे कर लिए तो उस पैसे की सहायता से ही उन्होंने उस घर को एक पक्के घर में परिवर्तित कर दिया. तो हमने देखा कि कविता के दादाजी ने जब शुरुआत में घर बनाया था तो वो एक कच्चा घर था और आपने कच्चे घर और पक्के घर जरूर देखे होंगे बच्चों. तो कविता के पिताजी ने बहुत मेहनत करके जैविक खेती की सहायता से अपने घर को पक्के घर में परिवर्तित कर दिया. Now you have to explore something and try to write the answers of these two questions in your notebook. So the question number 1 is, who made your house? Like Kavita's house told that it was made by Dadaji and finally it was renovated by his father. Now here you are being asked that who made your home. So try to find it out and try to write it in your notebook. तो बच्चों यहाँ आपको क्या पता करना है? आपको पता करना है कि आपका घर किसने बनाया. क्या आपके दादाजी ने बनाया, आपके पिताजी ने बनाया या किसी और ने, या दादाजी के भी पिताजी ने बनाया. तो आपको ये चीज़ को पता करना है और फिर आपको इसका उत्तर अपनी नोटबुक में लिखना है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, आस्क योर एल्डर्स दैट व्हाट ऑल चेंजेस वर मेड इन योर हाउस. सो यू हैव टू आस्क योर एल्डर्स दैट व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैव बीन मेड इन योर ओन हाउस. तो जैसे हमने देखा कि कविता के घर में कविता के दादाजी ने जिस प्रकार का घर बनाया उसको परिवर्तित करके कविता के पापा जी ने उसे पक्के घर का रूप दिया. तो क्या आपके घर की कहानी भी ऐसी है? यू हैव टू टॉक टू योर एल्डर्स अबाउट इट. आपको सिर्फ अपने बड़े लोगों से इस बारे में बातचीत करनी है और उनसे बातचीत करके पता लगाना है कि क्या आपके घर में भी कोई बदलाव हुए हैं. क्या इसमें कमरों की संख्या बढ़ी है, क्या इसमें कोई नई जगह बनी या कोई और जो शुरुआत में नहीं था ऐसी कोई नई जगह का निर्माण किया गया है. सो आई होप दैट यू ऑल विल टॉक टू योर parents and other elders about it. Now, what are the materials for building construction? Yes, for constructing a building, lot of materials are needed. So here you can see a building being constructed. तो बच्चों किसी भी इमारत को बनाने के लिए बहुत सारे सामानों की आवश्यकता होती है. जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं एक इमारत को और यहाँ पर इसे बनाया जा रहा है. So do you know, in making a house many kinds of materials are brought to use. Yes, that is true. The different kind of materials are brought to use while making or constructing a house. तो एक घर जो कि एक इमारत होता है शुरुआत में, उसे बनाने के लिए भी आपको बहुत सारे सामानों की ज़रूरत होती है. Now see, some people use sand, mud and kneaded mud to construct walls and thatched roof or tiled roof. So some people may use this kind of material like sand, mud or the kneaded mud and they can make thatched roof or tiled roofs. तो बच्चों कुछ लोग अपना घर बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग लेते हैं. हम जानते हैं मिट्टी या बजरी आदि का उपयोग लिया जाता है घर बनाने के लिए. और कुछ लोग जो अपने घर की छत बनाते हैं उसके लिए वो घास फूस की छत ही बनाते हैं, जबकि कुछ लोग पक्की छत बनाते हैं. Now some people use bricks, cement, gravel, iron, stones, etc. for building houses. So some people who make pakka houses or permanent structure, they use brick, cement, iron, gravel, stones, etc. तो बच्चों आपको पता है कि जो लोग
अपना पक्का घर बनाते हैं वो क्या क्या उपयोग लेते हैं घर बनाने के लिए? उन्हें बजरी चाहिए होती है, उन्हें ईंटें चाहिए होती हैं, उन्हें सीमेंट चाहिए होता है, उन्हें लोहे के बड़े बड़े से पाइप्स चाहिए होते हैं, उसके अलावा उन्हें पत्थर चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें एक घर बनाने के लिए लोग उपयोग में लेते हैं। नाउ you have to explore few things again. You have to observe things around you and try to explore these things. First thing, if you get a chance, observe a house or building being constructed in your area and find out what materials are being used in making it. So you should try doing this thing, that try to find out in your area if any building is being constructed, then see what kind of materials are being used there. तो बच्चों आपको अपने आसपास कोशिश करनी है, ऐसा अगर आपको मिलता है कि कोई बिल्डिंग बन रही है, किसी का घर बन रहा है, तो आप वहाँ पास में जाकर के देख सकते हैं कि घर बनाने के लिए वो लोग कौन कौन से सामानों का उपयोग कर रहे हैं. Then the second thing, from where is this material being brought? So try to find this out also, that the materials which are being brought for construction of that building, from which place, from which market those materials are being brought. तो आपको ये भी पता करना है बच्चों कि वो बिल्डिंग जो आपके आसपास बन रही है उसे बनाने के लिए जो सारा सामान आ रहा है, जैसे आप जानते हैं सीमेंट आ रही है, ईंटें आ रही हैं, या हम जानते हैं कि लोहा आ रहा है, बजरी आ रही है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से लाई जा रही हैं? क्या कोई ऐसा बाज़ार है जहाँ ये सब चीज़ें मिलती हैं? तो आपके नज़दीक ये सब चीज़ें कहाँ मिलती हैं ये भी आपको पता लगाना है. So students, today we talked few things about the construction of a house and we will be continuing this chapter in our next part. This was all for today. Thank you for watching.